Good morning, students. So, as we are doing our topic, that is the principles of management by Henry Fayol, and we have already covered the 9 principles in our previous lecture. So, coming towards the 10th principle, that is the order. Order simply has stands for that a right person should be placed at the right job and a right thing should be placed at the right place. That means the every kind of person is must be placed at the right job for which he or she is suitable according to his knowledge, experience, education, etc. And a right thing should be placed at the right place. Everything should be placed at their particular place. Here two things are like two kind of orders are there. One is the material order, that is for the physical resources or things, and social order, that is for the human sources. That means the right person at the right job and the right thing at the right place. So keeping the physical resources in order means that a proper place for everything and everything in its right place. हर चीज के लिए एक सही जगह और हर कोई हर चीज अपनी सही जगह के ऊपर. दैट मीन्स जितने भी हमारी मशीनरीज होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज बिजनेस के अंदर, उनकी एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए और वो अपनी सही प्लेस के ऊपर ही प्लेस्ड होनी चाहिए. एंड कीपिंग द ह्यूमन सोर्सेज और सोशल ऑर्डर, दैट मीन्स अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज अपॉइंटेड प्लेस. हर किसी के लिए एक जगह और हर कोई अपनी ही एक जगह के ऊपर. सो व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस? It creates better discipline in the organization. There's no loss of time in tracing the sources because the resources and the persons are on their right place and at the right time. There's complete utilization of material and human sources through this. Again, the violating effects: misuse of resources if there's no order of physical or human beings. Increase in the possibility of accidents because of the lack of knowledge of physical resources available in the organization and height of disorder. That means the mistakes and disturbances which being created in the organization due to the lack of order following. So coming towards the next principle, 11th one, that is the equity. Equity simply means equality. That means in an every kind of organization, according to this principle, the manager should always treat their subordinate as fairly as possible so that they develop a feeling of dedication for their work. There's no dishonesty with the employees, there's no partiality with the employees. The employees should be treated fairly, equally, according to their operations and according to their work, so that they have a feeling of dedication towards the organization and they'll work very efficiently and effectively, which will help to achieve the organizational goals. For example, a laborer complete 10 units of goods in a day. Another laborer who happens to be a relative of supervisor completes 8 units, but both get less remuneration. This violates the principle of equality. That means here this stands for, see, अ लेबर है उसने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस की, एक अनदर लेबर है उसने 8 यूनिट प्रोड्यूस की. जिसने 8 यूनिट प्रोड्यूस की दैट इज द रिलेटिव ऑफ द सुपरवाइजर जो काम चेक कर रहा है. तो उन्होंने दोनों को इक्वल सैलरीज पे कर दी. दैट्स नॉट फेयर बिकॉज जिसने ज्यादा काम किया है उसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, जिसने कम काम किया है उसे कम मिलनी चाहिए. तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एम्प्लॉयज के अंदर पार्शियलिटी, प्रिजुडाइसेंस नहीं होनी चाहिए जिससे उनकी जो फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट आए. दैट ओनली स्टेट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स? एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होंगे अगर इक्वालिटी है. Devotion to the organization, that they will develop a feeling towards the organization for the betterment of the business units. Skilled employees जितने भी हैं वो अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करेंगे बिकॉज देयर इज एन इक्विटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. अनस्किल्ड एम्प्लॉयज ट्राई टू अचीव सम स्किल्स बिकॉज अगेन इक्वालिटी है तो सभी समान है, तो वो जो स्किल्ड है वो और स्किलफुल बनेंगे और जो अनस्किल्ड हैं दे विल इनहेंस देयर स्किल्स. What are the violating effects? It create dissatisfaction for the skilled workers. इक्विटी का प्रिंसिपल नहीं फॉलो हो रहा, तो जो काम ज्यादा कर रहे हैं जो कम कर रहे हैं दोनों को इक्वल सैलरी मिलेगी, तो वहां पे डिससेटिस्फेक्शन होगी. Skilled workers again lose confidence in the organization. Efficiency of the skilled workers will decline again because by not following the principle of equity, and increase in the carelessness of the unskilled workers. अगर unskilled workers को भी हम skilled के बराबर सैलरी दे रहे हैं तो फर्दर फ्यूचर के अंदर वो और केयरलेस हो जाएंगे. Next, 12th is the stability of personnel. Stability of personnel simply has stands means there should be a stability of tenure of employees so that the work continues efficiently. That means एम्प्लॉयज को बार बार नहीं बदलते रहना चाहिए और बिजनेस को इस तरीके से रन अप करना चाहिए कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े. अब अगर वो लंबे टाइम पीरियड तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं तो वो एक ही जगह एक ही बिजनेस के अंदर अच्छे से काम करेंगे, उनको बार बार ट्रेनिंग्स की जरूरत नहीं है
हमें बार बार बाहर से नए एम्प्लॉयज हायर अप करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो जितना बाहर से एम्प्लॉयज को हायर अप करने का खर्चा होता है वो भी क्या हो जाता है, कम। सो दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इज नीडेड। It states that tenure of appointment must be fixed for a minimum period to provide stability। कम से कम जो उनका टाइम पीरियड होता है उसे मिनिममली फिक्स करना चाहिए ताकि वो स्टेबल बिजनेस के साथ जुड़े रहें। एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसी सारी चीजें स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल के अंदर आती हैं। अगेन जो वर्क एम्प्लॉयज होते हैं, अगर हम उन्हें बार बार एक्सचेंज करते रहेंगे तो यहाँ ये बिजनेस के लिए बहुत ही हार्मफुल है। बिजनेस की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही इनइफेक्टिव हो जाती है, इनएफिशिएंट हो जाती है। अगर वर्कर्स को हम प्रॉपरली एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रीट नहीं कर रहे, कंपनी के अंदर अनहेल्दी इन्वायरमेंट है, तो एम्प्लॉयज वहां पे लंबे टाइम पीरियड तक काम नहीं करेंगे। तो एम्प्लॉयज की बेटरमेंट के लिए उन्हें पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना, हेल्दी इन्वायरमेंट देना, क्लीननेस प्रोवाइड करना, अच्छी फेयर सैलरीज देना, उन्हें टाइम टू टाइम बिजनेस के साथ अटैच करके रखना, दिस इज नोन एज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पॉजिटिव इफेक्ट्स आर व्हाट? एम्प्लॉयज रिमेन सेटिस्फाइड, कॉन्फिडेंस रेपुटेशन बढ़ेगी बिजनेस की, स्किल्ड वर्कर्स बिजनेस की तरफ ज्यादा आएंगे बिकॉज वो मार्केट के अंदर जब बिजनेस की रेपुटेशन है ओनली बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयज, सो एवरीबडी वांट टू वर्क विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग, क्योंकि सेम ही लोग अगर आपके लंबे टाइम पीरियड तक चल रहे हैं तो आप बार बार एम्प्लॉयज को चेंज नहीं कर रहे, तो ट्रेनिंग की नीड कम है। वायलेटिंग इफेक्ट, डिसबिलीफ अमंग द एम्प्लॉयज, रेपुटेशन खराब होती है, गुड वर्कर्स कंपनी को छोड़ देते हैं अगर देयर इज नो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स। बार बार नए लोग लाओगे तो देयर इज हैवी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस फॉर दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयज। 13 इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव सिंपली मीन्स गिविंग द अपॉर्चुनिटीज, और किसी को एक्सप्लोर करने के लिए उन्हें मौका देना। सो एम्प्लॉयज मस्ट बी एनकरेज टू गिव सजेशंस विच में improve productivity to develop and execute plans according to this principle। that means employees in the organization must be given an opportunity in making and executing plan। हम बिजनेस के अंदर जब टॉप लेवल कोई भी डिसीजन लेती है तो डिसीजन लेने से पहले उससे टॉप लेवल मैनेजमेंट को, जो मिडिल लेवल या सुपरवाइजर्स हैं उनके साथ उन्हें डिस्कशन करनी चाहिए। डिस्कशन के बाद सबके पॉइंट्स को, सबकी अंडरस्टैंडिंग को, सजेशंस को मानना चाहिए। इससे एम्प्लॉयज विल फील मोटिवेटेड कि उनसे डिसीजन मेकिंग के अंदर उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है। सो दैट इज नोन एज इनिशिएटिव। पॉजिटिव इफेक्ट्स, again the thinking power of employees will increase if we'll discuss with them about the functioning or about the decision making। cooperation employees के अंदर बढ़ती है, डिसीजन वो आसानी से implement कर देते हैं क्योंकि उन्होंने खुद भी कुछ ना कुछ suggest किया है डिसीजंस के अंदर। increase in the sense of attachment to the organization, they will feel better कि हमसे पूछ के डिसीजंस लिए जाते हैं। what are the violating effects? atmosphere of non cooperation prevails, again ऐसा कुछ नहीं होगा तो non cooperative होंगे employees। decline in the employees attachment to the company, they will not feel attached with the company, and the employees thinking power is also reduced। So 14th principle and the last